Alright, let's get to the chapter. Now come to turn to the first page. एक बार थोड़ा mark करा देता हूँ. Basic stats. First word वो statistics बोल रहे हैं. What it is refers to data methods to analyze. Please don't start learning all that. Statistics पता अपने लोग को क्या होता है? Data का analysis and all होता है. Next part में just mark descriptive statistics and next paragraph inferential statistics. So basically there are two ways in which we can categorize as to what we are using statistics for. ये सब देखो basic theory है. It is it is also not a part of an LOS. Are you understanding? आज statistics बताना पड़ेगा ना, statistics पढ़ रहे हो तो उसी लिए दिया है, बहुत ही रफ है. Understand what you are supposed to be learning, what not. तो यहाँ पर descriptive statistics is just saying that summarizing the data, graph, charts and all के form में summarize करके देख पाएंगे ना trend and all data का क्या है. Inferential statistics is what we are going to be bothered about. Inferential statistics का मतलब क्या हुआ? What do you understand by the term inference? Inference is to draw conclusions. Ultimately, data को study करके data के बारे में conclusions draw करना है. वरना data study करने का फायदा क्या? Past data को use करके I want to make conclusions so that I can make forecasts about the data. That is my objective over here, right? I want to study the past data. And on that basis, I want to make conclusions, I want to make forecasts. Bolo, getting it? Everybody following? So I want to make forecasts, I want to make conclusions about the data. That is inferential statistics. So that is वो process क्या होगा? How are we going to make conclusions about the data? That is what inferential statistics is all about. And we were just discussing correlation and all. We were just discussing कि अपने लोग ultimately ये graph बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? Suppose I want to make this straight line. I'm a little tired, I'm sitting. Suppose I want to make this straight line. तो ultimately ये तो past data का points calculate किया आपने, plot किया यहाँ पर. वो past data का points plot करके you will try to form this equation of this line. ये line का जो equation होगा उसको study करोगे ना. ये line का equation के basis पे I will try to tell you that अच्छा ONGC का and oil का relationship is 5 plus 3.2x. तो now I will sit down and try to make a forecast about oil. एंड ऑयल के फोरकास्ट के बेसिस पे उसको फिर इक्वेशन में डालूंगा 5 plus 3.2 ऑयल एंड दैट विल टेल मी ओएनजीसी का मूवमेंट कैसा होगा. आज ओएनजीसी का मूवमेंट चाहिए तो मेरे को पहले ओएनजीसी किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो फैक्टर्स को फोरकास्ट करना होगा. दैट ओके ओएनजीसी का प्राइस इज गोना डिपेंड ऑन ऑयल एंड सिंस ऑयल का इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत वो है सो विल हैव टू लुक एट द डॉलर रेट्स आल्सो बिकॉज यस ऑयल प्राइसेस एंड दिस फॉरेक्स का प्राइसेस आर वेरी वेरी इंटर रिलेटेड. So I will study these two things. Then I will be able to draw a conclusion. Bolo, understanding this, right? So that is what I'm talking about over here. तो वो inferences draw कैसे करेंगे? आज say suppose the next part is gonna come in. Next paragraph देखिए. Just underline the term population. Now there is something called the sample and population का study that we'll have to do. वो थोड़ा बाद में आएगा. But what do you understand by population? What do you understand by sample? Now today say for example if I want to study let's say the Indian economy का बात करते हैं. I want to study the movement of the Indian economy कि India as a economy कैसा परफॉर्म कर रहा है. इंडिया में कितने इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज होंगे सोच के देखिए. 2 लाख कंपनीज को तो गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है. So सोच के देखिए कितने कंपनीज होंगे. जब 2 लाख तो शैम कंपनीज था. Just imagine the number of companies. Just imagine the number of, say for example, I want to study how the FMCG sector of India is doing, or the retail sector of India is doing. Retail sector India का study करने के लिए, will you be able to study every single kirana shop, retail shop, grocery shop all across the country? Not possible. क्या करोगे? Sample survey करोगे. कोई लोकेलिटी पकड़ोगे और 10 लोकेलिटीज चूज करोगे रैंडमली और उसमें से जाकर के 10 शॉप्स में कुछ सर्वे करके आओगे. And वो 50 शॉप्स के सर्वे के बेसिस पे you'll try to make a forecast. I want to study the Indian economy. There are so many companies. I don't know where the Indian economy is heading. There are lakhs of companies. How do I collect data? सारे डेटा तो वो लोग फाइल भी नहीं करते बैलेंस शीट पीएल अकाउंट एंड ऑल. हर कंपनी थोड़ी फाइल करेगा. What I do is I take up 50 companies. I form an index Nifty. उसमें 2-4 FMCG डाल दिया, थोड़ा सा बैंकिंग डाल दिया, थोड़ा सा फार्मा डाल दिया, अलग अलग सेक्टर्स को लेकर के, सो दैट ऑल द सेक्टर्स आर बीइंग रिप्रेजेंटेड. एंड आई हैव टेकन द लार्ज कंपनीज ऑफ द कंट्री एंड आई हैव मेड अ ग्रुप ऑफ दोस 50 स्टॉक्स टुगेदर. दैट इज एन इंडेक्स.
वो इंडेक्स कैसे मूव कर रहा है, वो 50 स्टॉक्स क्यूमुलेटिवली ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कितना परसेंट मूव कर रहा है, व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ दोस 50 स्टॉक्स टुगेदर, दैट गिव्स मी एन आइडिया एज टू हाउ इंडिया का स्टॉक मार्केट इज मूविंग और हाउ इंडिया का इकोनॉमी इज मूविंग. आप पूरा इकोनॉमी खाली 50 कंपनीज के बेसिस पे निकाल लिए, दैट इज सैंपल. The population will be the entire companies, all the companies in the country. Because when you want to study the growth, when you want to study the economy, when you want to study the output of the country, you have to include all the companies, all the production जो भी कर रहे हैं, जो भी companies, firms. But अपने यहाँ पे तो वैसा नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे तो we are taking 50 companies. Why? Because population का एक तो data नहीं मिलेगा. Data मिल भी गया तो जितना time लगेगा तब तक तो वो companies ही change हो चुका होगा पूरा. The amount of time you're going to take to get it collected. And the cost of collecting that data and analyzing the data is going to be humongous. उस डेटा का कलेक्शन से एनालिसिस करके जितने पैसे नहीं कमाओगे उसका 100 टाइम्स तो कॉस्ट बेयर हो जाएगा. So basically when you want to get into inferential statistics, all this preparation is for inferential statistics. When you want to start making conclusions based on the past data, when you want to start making forecasts and all, level 2 में probably we will see machine learning and ये सब data science and all. Of course उतना डेटा मतलब उतना डिटेल में नहीं होगा, बट व्हाट इज ऑल दिस? बेसिकली पास डेटा. एक बंदा ऑनलाइन जाता है तो कहाँ कहाँ क्या क्या कितने कितने क्लिक्स कर रहा है, अगर इस बंदे ने ये क्लिक किया है तो उसने ये वाला चीज भी प्रोडक्ट चेकआउट किया है, उसी हिसाब से तो अमेजॉन में नीचे देखते हो, यू मे बी लाइकिंग दीज प्रोडक्ट्स ऑल्सो, बिकॉज जो प्रोडक्ट आप खोले हो बाकी कस्टमर्स ने उस प्रोडक्ट के साथ में क्या क्या प्रोडक्ट खोला था, वही प्रोडक्ट्स जो हाईएस्ट खुला होगा, ओपन हुआ होगा, दैट इज व्हाट दे विल बी शोइंग एज अ रिकमेंडेशन ऑन योर लिस्ट. बोलिए, अंडरस्टैंडिंग द आइडिया. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो ये मशीन लर्निंग एंड डेटा लर्निंग एंड ऑल टुडे इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज बहुत इजीली स्पेस अवेलेबल है. सोचिए ना, फोकट का 25 GB तो एक मेल आईडी क्रिएट करने से मिल जाएगा सबको, राइट? सो दैट इज व्हाई दीज थिंग्स हैव enabled this kind of analysis. So we're looking at inferential statistics over here. Inferential statistics, next पैराग्राफ में पॉपुलेशन टर्म मार्क किया है, पॉपुलेशन सैंपल में डिटेल्स में आएंगे. पॉपुलेशन यू कैन जस्ट मार्क इफ यू वांट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल मेंबर्स ऑफ अ स्टेटेड ग्रुप, दैट इज द एंटायर पॉपुलेशन. नेक्स्ट पैराग्राफ, कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग, एंड उसके नेक्स्ट लाइन में जस्ट मार्क सैंपल इज अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन. सैम्पलिंग, पॉपुलेशन, ये सब कैसे करना है बाद में डिटेल में करेंगे, ये सब याद नहीं करना है. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. ऑफ कोर्स यू डोंट नीड टू रिमेंबर. नाउ कम टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी वाज द फर्स्ट लाइन उस दिन किए थे, मीन मीडियन मोड. मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में रेंज, मीन एब्सोल्यूट डिविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा, फिर स्क्यूनेस, फिर कर्टोसिस. वी हैव डन दैट. सो सेंट्रल टेंडेंसी जो हेडिंग ही दिया हुआ है उसके साइड में लिखने का मन है तो मीन मीडियन मोड लिख लीजिए. Just give me a second. Standard deviation भी नहीं है. हाँ ठीक है. उसके बाद में you come to the mean part. There is a population mean given and there is a sample mean given. Actually population and sample mean का details will come in later. Now what happens is, if you want you can draw this over here, या फिर बाद में भी बना सकते हो, बाद में बनाना, एक बार खाली देख लो. So say for example I have 1 lakh companies to study, that is my total population. इसको स्टडी करना पॉसिबल नहीं है. I take a sample of 50 companies. 1 lakh companies का जो एवरेज है that is mu. वो कैसे निकल के आएगा? You will take the summation of all the 1 lakh companies and then you will divide it by 1 lakh. इसको निकालना, ये hypothetically I'm writing it, इसको practically निकालना possible नहीं है because 1 lakh companies का data is too time consuming, too expensive and you're not going to go for that. इसको खाली paper पे लिख रहे हैं. You don't have this data. In order to predict what is going to be the average return of these 1 lakh companies, I want to take something of a sample of 50 companies and then calculate average of this. इसका जो average होगा वो summation of these 50 companies होगा and of course we will divide it by 50 or 1 lakh 50. So this is your population का average which I want to predict but I cannot because of the time consuming and all those factors.
So what I'll do is I will calculate the sample का average and I will use this as a measure for this. ये सब चीज बाद में आएगा, इस चैप्टर में अभी नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर जब करेंगे तब I'll make you do all these things. If you still want to make this, you just make this much right now. साइड में बना दीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा. Just make this, you'll not be confused. बाकी sample population will do. Done? Right, so basically we will be studying the sample in order to make predictions or forecasts about the population. Next part में आइए, अब ये example देख लो यार, ये example नहीं करा रहा हूँ, वो numbers को add करके divide by 12 करने के लिए दिया है, वो सब, and please don't have high expectations to get this out of the question in the exam. Next, population mean and sample mean में, just come to those points, the properties that they're talking about, कुछ bullets दिया हुआ है. All interval and ratio data sets have an arithmetic mean. Ignore that point. All the data values are considered to be included in the arithmetic mean computation. Basically क्या है ना, बहुत तरीके का data sets हो सकता है. We can have data as 1, 2, 30, 40, 50. We can have data sets 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. बहुत तरीके से we can have the data. So now, वो सब स्कूल में आप लोग का किया हुआ है. Now suppose 20, 40, 30 ये सब का तो एवरेज ले लेंगे प्लस करके डिवाइड बाई 3 एंड वट एवर. ये तो इजी है. इंटरवल स्केल में लाइक 10 to 20 में 5 डेटा लाइज, 20 to 30 के बीच में 15 डेटा पॉइंट्स लाए, 30 to 40 के बीच में 70 वैल्यूज लाए. रेंज कैलकुलेट किया. सपोज आई हैव 1000 वैल्यूज, 5 वैल्यूज 10-20 के रेंज में आ रहे हैं, 15 वैल्यूज इस रेंज में आ रहे हैं, 70 वैल्यूज इस रेंज में आ रहे हैं, एंड सो ऑन. वी कैन टेक द मिड पॉइंट ऑफ दीज एंड डू सम एवरेज का कैलकुलेशन. अगर याद है स्कूल का तो इट्स फाइन, बट अदरवाइज वी डोंट नीड ऑल दिस राइट नाउ. सो आई हैव टू मूव फॉरवर्ड. ये सब वो नहीं होता था, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, उसका हाइट को पहले इसमें डालो, ये सब किया हुआ हम लोग का स्कूल में, राइट. एंड इवन इफ नॉट डन, डोंट वरी अबाउट इट. सो बेसिकली इवन इफ आई गेट एन, अपने इसको बोल सकते हैं ना कि 15 पीपल का, 15 का हाइट है 5 जन का, 25 का है 15 पीपल का, 35 का है 70 पीपल का. आई कैन टेक द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल्स एंड देन ऑल्सो डू द कैलकुलेशंस. अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट तो हो ही जाएगा ना कोई तरीके से. दैट इज व्हाट वी आर सीइंग ओवर हियर. ऑल इंटरवल्स एंड रेशियो डेटा सेट्स विल हैव एन अरिथमेटिक मीन. ऑल डेटा वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड आर इंक्लूडेड इन अरिथमेटिक मीन. मीडियन में सारा डेटा इंक्लूड नहीं होता है. अरिथमेटिक मीन में ऑल द वैल्यूज आर इंक्लूडेड, एंड दैट इज व्हाई एन एक्सेप्शनल आउटलायर कैन डिस्टॉर्ट द मीन. उस पॉइंट के अगेंस्ट में लिखना है तो लिख लीजिए. दैट इज देयरफॉर एन आउटलायर कैन डिस्टॉर्ट मीन because all the data is going to be included in mean ka calculation, right? That is why, or because therefore an outlier can distort mean. Therefore an outlier can distort mean. Next one, all data set has only one arithmetic mean. You cannot have multiple AMs. कुछ variables होते हैं जहां पर you can get multiple answers. Like say for example, when I'm calculating एक इक्वेशन ही निकाल रहा हूं ना, x² plus 5x minus 3, इसका दो रूट हो सकता है ना, 2 and 3. -2 -3 नहीं, 6. I think this will work. हाँ, इसका इक्वेशन का रूट हो सकता है ना -2 and -3. So you can have 2 answers for something, but arithmetic mean का एक ही आंसर आएगा. You cannot have multiple answers, right? Next one, the sum of deviations of each observations from the mean is always 0. उसके साइड में take this. Sigma x minus x bar is always equal to 0,
एंड दैट्स एग्जैक्टली द रीजन व्हाई मीन एब्सोल्यूट डिविएशन के लिए x माइनस एक्स बार का एब्सोल्यूट वैल्यू लेना पड़ता है, क्योंकि x बार इज एकदम बीच का वैल्यू, तो ऑल द वैल्यूज माइनस दिस करोगे तो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेगा ही करेगा. x बार इज सिग्मा x बाई एन. x बार सिग्मा x बाई एन करके तो x बार आता है, तो अगर सिग्मा x यहां पे आ गया एंड n टाइम्स x बार ले लिया तो दोनों कट ही जाएगा ना. दैट इज वाई वेरियंस के लिए either you square it or mean absolute deviation के लिए you take the absolute value. x minus x bar is gonna give you 0 summation of the same. वही चीज लिखा हुआ है. Now you have to understand, एक एक पॉइंट के ऊपर में इतना नहीं आप लोग रुक सकते. I'm just starting off with the content, तो थोड़ा ज्यादा वैसे कर रहा हूँ, but you have to know which is important. ये सब पॉइंट्स उतना कोई ग्रेट नहीं है. You have to move a little quick. These are just the very basic introduction type chapters so that we get into the major portion. वो एग्जाम्पल छोड़िए, बाद में देखिएगा. नेक्स्ट पार्ट में आइए. नेक्स्ट एग्जाम्पल के नीचे देखो, अनयूजुअली लार्ज और स्मॉल वैल्यूज कैन हैव डिसप्रोपोर्शनेट इफेक्ट ऑन कंप्यूटेड वैल्यूज. अनयूजुअली लार्ज और स्मॉल वैल्यूज को ब्रैकेट करके आउटलायर्स लिख लीजिए. पुट एन एरो अगेंस्ट द सेंटेंस एंड राइट डिसएडवांटेज ऑफ am डैश मीडियन सॉल्व्स इट. डिसएडवांटेज ऑफ am डैश मीडियन सॉल्व्स इट. डिसएडवांटेज ऑफ am डैश मीडियन सॉल्व्स इट. क्योंकि मीडियन आउटलायर से इफेक्ट नहीं हो रहा है. मीडियन डज नॉट इंक्लूड ऑल द वेरिएबल्स, ऑल द वैल्यूज. मीडियन खाली बीच का पोजीशन का एक वैल्यू के ऊपर, दो वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है. नेक्स्ट पैराग्राफ मीडियन मार्क करिए. मिड पॉइंट ऑफ डेटा व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड डिसेंडिंग और डिसेंडिंग. नेक्स्ट पैराग्राफ के साइड में लिखिए. इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. जस्ट राइट डाउन वन लाइन. If mean and median are very different, वो gap बताना था. If there's a major gap between mean and median, or if mean and median are far apart, comma, outliers must be present. If mean and median are far apart, outliers must be present. आउटलायर्स नहीं होगा तो होपफुली मीन मीडियन होना चाहिए सेम टाइप का. बट ऐसा भी पॉसिबल है कि आउटलायर्स बहुत सारा है लेकिन दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है. दैट इज व्हाई मीन मीडियन साथ में है. बट अगर बहुत सारा आउटलायर्स पॉजिटिव नेगेटिव है तो कर्टोसिस बताएगा हम लोग को whether a lot of data is concentrated in the ends. That is why we study all these measures. Are you understanding? If the data is skewed, then the mean and median will be far apart. We have studied all these terms now. Getting the idea? समझ में आ रहा है? You are able to connect everything. Next वो examples देख लीजिए. फालतू है. Mode मार्क करना है, just term मार्क कर दो. Highest frequency, last line bimodal, trimodal. Now you understand when you are going to be revising this chapter, कितना quickly revise होगा. जितना अनलाइन किया मार्क किया, जो भी शॉर्ट में लिख रहे हो उससे पूरा कवर हो जाएगा. नेक्स्ट पेज, ज्योमेट्रिक मीन अनलाइन करिए. कैलकुलेटिंग इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स ओवर मल्टीपल पीरियड्स, वी ऑलरेडी डन दिस. उसका एग्जांपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट एक बार कर लेते हैं क्विकली. ये कर लिए थे ना लास्ट डे, एम जी एम एच एम तीनों करा दिया था, राइट. लेट्स जस्ट डू द एग्जांपल एक बार इसका. For the last 3 years, the returns of Acme Corporation common stock have been minus 9.34%, 23.45 and 8.92. Alright, so basically time 0, time 1, time 2, time 3. अगर $100 ईच स्टॉक में डालता तो 100 में 9.34 का नुकसान, 100 में 23.45 का फायदा, 100 में 8.92 का फायदा. तो ऑन एन एवरेज तीनों में कितना फायदा? प्लस डिवाइड बाई 3. But over here, I've invested in the same stock over the 3 years, and these are the 3 returns that it is providing. So $1 over here is going to become 1 minus 0.0934 times over here, 9.34% का नुकसान. तो मेरे पास आएगा, बचेगा 0.9066. उसका ऊपर में आई विल बी मेकिंग 23.45% रिटर्न. इस अमाउंट के ऊपर 1.2345 बन जाएगा. प्रिंसिपल प्लस द रिटर्न 1.2345 टाइम्स.
and that will become into 1.0892 times. This is what $1 becomes in 3 years. So in 1 year कितना बनेगा? So this is what $1 becomes on an average in 1 year. तो -1 करेंगे तो average return आ गया, and that average is not the arithmetic mean, that is the geometric mean over here. So all we've done is 1 plus R1 into 1 plus R2 into 1 plus R3 to the power 1/3 minus 1. That's what we've done. 1 plus R1 into 1 plus R2 into 1 plus R3 the whole to the power 1/3 minus 1. ये तीनों मल्टीप्लाई करने के बाद टू द पावर ऑन योर कैलकुलेटर 3 रेसिप्रोकल बटन -1. प्लीज मेक श्योर नाउ यू हैव, मतलब अभी वो टाइम है कि आप जाकर के एक बार कैलकुलेटर का ऑलमोस्ट एन आवर का वीडियो देख सकते हैं. सो बी गेट कंफर्टेबल विद द कैलकुलेटर का वीडियो एंड जस्ट मेक श्योर. और नहीं भी समझ में आता है तो कैलकुलेटर में देखो कि मेरे को क्या क्या फंक्शंस आ गए. व्हाट आर द फंक्शंस, यू नो, आई नीड टू नो नाउ. प्लीज मेक श्योर दैट दैट कैलकुलेटर वाला पार्ट इज टेकन केयर ऑफ. बोलिए फॉलोइंग. दिस इज वेरी इजी. ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट में वो प्रोफेसर्स नोट दिया हुआ है, उधर जस्ट राइट वन थिंग बिसाइड द प्रोफेसर्स नोट. Just write this. Done. AM is going to be AM greater than GM greater than HM, and तीनों का भी इक्वल होगा when all the x's are the same. So अगर 2 2 2 2 2 का AM GM HM तीनों कुछ भी निकालो आंसर सेम आएगा. Otherwise arithmetic mean is greater than geometric mean is greater than harmonic mean. इसका एप्लीकेशन एक दो जगह लगेगा, so you need to know this. You need to know this. Like say for example कुछ कोई चीज का वैल्यूएशन के लिए अगर AM यूज करेंगे then the answer will be like this, GM यूज करेंगे then the answer will be like this. तो उस तरह का चीज अपने लोग बाद में करेंगे. It will come in some of one of the chapters कहीं आता है, ऑप्शंस वगैरह कुछ करेंगे, whatever later topics में you will be finding this part. Comfortable till here, everyone? Alright. Next portion में आइए. Next portion is your expectations. Alright, let me just skip the expectations part right now. Let me complete the remaining chapter. फिर मैं एक साथ ही expectations part कराता हूँ. Just skip the LOS pertaining to this expectations, a few pages. Move to covariance and correlation. ये कर चुके अपने लोग. First line देखिएगा. Variance and standard deviation measure the dispersion of only one variable. One variable circle करिए. And the last line of the paragraph, covariance provides information about two variables. So you know exam के लिए ना पूरा का पूरा sentences याद नहीं कर पाओगे. Variance 1, covariance 2 variables. उतना देखा भगाया. You have to revise the entire content before the exam, right? So starting से ही अपना book में notes वगैरह उसी तरीके से बनाइए, so it becomes easier for you. So make your notes in this manner so that it is easier, right? And क्या बोलते हैं इसको? ट्राई टू यूज कलर पेन्स एंड ऑल. आई हैव टोल्ड यू कि वो सब चीज करो एकदम अच्छा से, मतलब स्टडी. एग्जाम टाइम में बहुत फायदा होगा. राइट नाउ यू माइट फील अ लिटिल चाइल्डिश बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट विल बी वेरी हेल्पफुल जस्ट बिफोर द एग्जाम, बिकॉज वहां पर वो एक हफ्ता में रिविजन, फिर एग्जाम के पहले एक दिन में यू नो 2 वीक्स में रिविजन और 10 डेज में रिविजन, एंड देन 2 डेज में अगेन आई वांट टू जस्ट गो थ्रू द एंटायर थिंग. सो विल बी वेरी हेल्पफुल देन. नेक्स्ट लाइन कोवेरियंस देखिए. कोवेरियंस का जो फर्स्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, एक बार जो स्किप दैट. प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेरियंस में आइए. कोवेरियंस x, y इज इक्वल टू 0, उसके ऊपर में अंडरलाइन करिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ऑब्वियसली इफ कोवेरियंस इज 0, इफ द डेटा इज नॉट रिलेटेड, दैट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर. ऑयल ONGC नॉट इंडिपेंडेंट, बट रेनफॉल इन एन अफ्रीकन सिटी एंड इंडिया का निफ्टी ऑफ कोर्स अनरिलेटेड, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. दो वेरिएबल में कोई रिलेशन नहीं होगा. Next, covariance x, x is variance of x. We've already discussed that. बाकी जो फॉर्मूलाज है एक बार के लिए स्किप करेंगे. नेक्स्ट कोवेरियंस में आइए. टिक कर लीजिए. नीड टू नो द फॉर्मूलाज. आई विल डिस्कस इट लिटिल लेटर. एग्जांपल ऑफ कोवेरियंस यू कैन जस्ट चेक.
उसका एक बार आंसर का टेबल में आ जाइए डायरेक्टली. यू विल डू इट एट होम योर सेल्फ. ईजी एग्जाम्पल है. एक बार टेबल में आ जाइए. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन. सो बेसिकली द इवेंट्स आर गिवन. अच्छा प्रोबेबिलिटी वाला है ना, ठीक है. आई विल कम बैक टू दिस. एक बार नीचे आइए एग्जाम्पल के बाद. कोवेरियंस इज डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट. मार्क करिए. Last line expressed in terms of unit squared. We've discussed this. Last line of that paragraph expressed in terms of unit squared. मैं जो skip किया हूँ मैं एक साथ कराऊंगा. They are all one part of one topic. Next correlation term mark करिए. Correlation का formula mark करिए. Now what happens is ये सब formulas में ना ये formula काट करके you'd rather write it this way. See it's always easier. I told you please अपना formula sheets खुद बनाइए. फॉर्मूलाज लिखने का याद करने में इजी होगा. एंड ट्राई टू यूज द सेम नोटेशंस एवरीवेयर. आई विल राइट इट दिस वे. सॉरी. डोंट थिंक इट्स इजियर टू लर्न द फॉर्मूला यूजिंग द सेम एक्स एंड वाई. अभी वो आर आई आर जे करके बुक में फॉर्मूला दे रहा है. आर आई आर जे मतलब रिटर्न ऑफ स्टॉक आई विथ रिटर्न ऑफ स्टॉक जे. वाई डू वांट टू लर्न न्यू फॉर्मूला? जो 11-12 में जो फॉर्मेट में याद किए उसी फॉर्मेट में याद करते हैं ना अपने वापस. योर अटेंशन इज गोना बी हायर. डोंट मतलब सेम चीज के लिए मल्टीपल नोटेशंस मत यूज करिए बिकॉज ऑलरेडी वी हैव क्वाइट अ फ्यू फॉर्मूलाज टू रिमेंबर. सो डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स फॉर योरसेल्फ. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग अपने हैंड राइटिंग में अपने हिसाब से फॉर्मूलाज. टेल मी कंफर्टेबल. नेक्स्ट पार्ट में आइए. प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन. Correlation measures the strength of linear relationship. Linear word circle करिए please. No units. Next line. -1 to +1. Next line. If correlation is equal to 1, variables have a perfect positive correlation. Please put an arrow over there and write. It does not mean that if x changes by 1 unit, y changes by 1 unit. It does not mean that if x changes by 1 unit, comma, y changes by 1 unit. It does not mean that if x changes by 1 unit, y changes by 1 unit. Full stop. It means that if x changes by 1 unit, y changes by the exact same units every time. It means that if x changes by 1 unit, y changes by the exact same units every time. It does not mean that if x changes by 1 unit, y changes by 1 unit. It means that if x changes by 1 unit, y changes by the exact same number of units every time. It means that if x changes by 1 unit, y changes by the exact same units every time. Comfortable? Next line में वो negative बोला हुआ है, perfect negative and all that we've done. उसके side में दिया हुआ है. एक बार just hold on for this. लास्ट पॉइंट में आइए. कोरिलेशन इज इक्वल टू 0. देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप. लीनियर वर्ड अगेन सर्कल करिए. यू नीड टू रिमेंबर दैट. इंटरप्रिटेशन वाला टेबल इफ यू वांट यू कैन जस्ट सी, यू कैन जस्ट टिक, बट इट्स इजियर टू लर्न फ्रॉम दीज ग्राफ्स, इसीलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया था. नेक्स्ट पार्ट इंटरप्रिटिंग अ स्कैटर प्लॉट में आइए. मार्क करिए. स्कैटर प्लॉट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ वेयर ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स. These are all scatter plots. Scatter plot मतलब क्या? Plot of data is there, x axis, y axis there, and I'm plotting all my x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4. This is scatter plot. Nothing to learn. Nothing to learn. Now, इस scatter plot का book में graphs दिया हुआ है. I would suggest you to just complete the graph. So, have it in this manner. वहाँ पर आपका perfect positive, less than perfect positive and zero correlation is given. If you want, you can draw it in this manner. It becomes easier. This is perfect, this is strong, this is weak. This is zero correlation, no linear relationship. This is perfect, negative. This is perfect positive, strong positive, weak positive. This is perfect negative, strong negative, weak negative. It's easier to learn it this way. If you want, you take this down.
So the perfect term is talking about the strength, perfect, strong or weak, and the positive negative is talking about the direction. कि x and y move in the same direction or x increases, y decreases, right? बोल. Minus 0.80 होगा. 0.8 is telling you it's strong or not. Minus is telling you the direction. 0.8 is telling you strong है कि नहीं. Minus 0.4 is weak. So if you want to take it this way, so as you move over here, the relationship weakens. As you move over here, the relationship weakens. So minus 0.8 is strong, minus 0.4 is weak. Plus 0.8 is strong, plus 0.4 is weak. As you move towards 0, the relationship weakens. Good till here, everyone. Next part, moments and central moments में आई है. Second line, just mark raw moments are measured relative to the expected value. उसका जो first two formulas है, cut that, strike that off. You don't need to worry. दोनों को काट दीजिए. Third वाला में आइए, central moment measured relative to the mean. You don't have to learn so much. I'm just making you mark एकदम roughly. उसमें फर्स्ट फॉर्मूला जो उसको काट दीजिए. नेक्स्ट फॉर्मूला में आइए वेरिएंस. अच्छा, उसके ऊपर में एक प्रोफेसर्स नोट दिया हुआ, कैन यू सी दैट? फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट इक्वल 0. मार्क दैट. उसके साइड में लिखिए. नाउ आई कैन इरेज दिस. अच्छा, एक बार देख लो पहले. बहुत ही सिंपल सा चीज है. मोमेंट इज बेसिकली x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n का समेशन. ठीक है. अभी पावर 1 अगर रखोगे तो ये तो 0 ही आएगा. पावर 2 रखोगे तो वेरिएंस आएगा. पावर 3 एंड पावर 4 रखोगे that was skewness and kurtosis. This was not skewness and kurtosis. These are raw moments जिसको you will have to standardize. कैसे standardize कर रहे थे? SD cube, SD to the power 4. अब वो SD को सिग्मा लिखा है, क्या लिखा है वो देख लेंगे अपने. But raw moments is this. So moment आपको खाली इतना, इसीलिए मैंने 1 2 3 4 करके बनाया था. If you remember, mean, median, mode on 1, variance, range, standard deviation, वो सब एक में. फिर skewness, फिर kurtosis. So this first moment is 0, second moment is variance, third moment को standardize करो skewness, fourth moment को standardize करो SD4. Otherwise moments and all का calculation, of course, understand, they want to test you, the exam wants to test you your understanding capability, not your calculator capabilities. कि वो बैठ करके क्यूब करते जाओ उसके बाद में moment calculate करके दो. You'll not get moment का calculation, so don't worry about it. We just need to understand first, second, third, fourth. The first moment has to be 0. We've already done this. Second moment, part 2 ले रहे वो variance है.
थर्ड एंड फोर्थ मोमेंट को रॉ मोमेंट है, यू नीड टू स्टैंडर्डाइज इट, यू विल गेट योर स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस. कि स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस बोथ आर यूनिटरी मेजर्स. याद करिए, स्क्यूनेस या तो पॉजिटिव नेगेटिव बताएगा मेरे को कि वेदर देयर इज अ पॉजिटिव आउटलायर और नेगेटिव आउटलायर. कर्टोसिस 3 के ऊपर 3 के नीचे, देयर इज नो यूनिट, दे आर एब्सोल्यूट वैल्यूज. 3 के ऊपर 3 के नीचे. बोलिए फॉलोइंग, लेट्स सी. अब मार्क करिए. प्रोफेसर्स नोट, फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट इक्वल 0. इफ यू वांट यू कैन राइट दिस. इनफैक्ट यू कैन, अच्छा अभी यहां पर जो नोटेशंस दिए है ना, आर एंड म्यू एंड ऑल, यू डोंट नीड टू अगेन वरी अबाउट इट. आर बोल रहा है रिटर्न ऑफ स्टॉक आई, दैट इज बेसिकली x1 x2 x3 को मैं r1 r2 r3 बोल सकता हूं. हु स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दैट? एंड पॉपुलेशन यूज करेंगे तो म्यू होगा, नॉर्मल मीन यूज करेंगे तो x बार होगा. So now it depends on whether you're using population data or sample data to do these calculations. If you actually want, you can cancel off this entire portion and you write it this way. I think easy रहेगा आपको याद करने में. एक चीज को एक ही नोटेशन से याद करिए, because there are anyways a lot of formulas. You actually cancel off the entire thing that's given over there and you take this down. अब कुछ नहीं करना पड़ेगा उसमें से, just take this much. Done? Done? So the first moment is gonna give you a 0. Second, third, fourth moment को आपको third and fourth को standardize करना होगा and that will give you a skewness and kurtosis. इसका formulas हम लोग anyways yesterday we had already seen this one. Book का formulas पूरा का पूरा cancel कर दीजिए, don't worry. उसके बाद में kurtosis में towards the end if you see there is a term given excess kurtosis k-3. We had already done this. Just इंस्टेड ऑफ 3 के ऊपर 3 के नीचे करने की जगह हम लोग को मन था कि 0 के ऊपर 0 के नीचे करें. वी जस्ट वांटेड टू शिफ्ट दैट स्केल. नहीं, स्केल नहीं, दैट लोकेशन. एक्सप्लेन करूंगा. लोकेशन पैरामीटर होता है, स्केल पैरामीटर होता है. 3 के ऊपर नीचे की जगह 0 के ऊपर नीचे करना था तो उसको शिफ्ट करना था वो लोकेशन को. सो एक्सेस कर्टोसिस -3. स्क्यूनेस कर्टोसिस में आइए. First, a distribution is symmetrical if it is shaped identically on both the sides. We've done this. Alright. उसके बाद में the 3 graphs are already given. वो 3 distributions दिया हुआ देखो next page पर. Mean equals to median equals to mode, वो सारा चीज दिया हुआ है. Positive skewed, right skewed एकदम properly बना हुआ है, उसमें कोई problem नहीं है. Mean greater than median than mode, next one, and mean less than median than mode, third one. Basically the mean is pulled towards the outliers. अगर वो distributions के साइड में लिखने का मन है तो लिख लो. Mean is pulled towards the outlier. Mean is pulled towards the outlier. You see the second and the third? ये वाला ग्राफ या फिर ये वाला ग्राफ, the mean is pulled towards the outlier. The mean is getting pulled towards the outlier. Why? Because the mean includes all the values. Median is बीच का position का value. अभी मार्क किए थे ना AM में कि it will be including all the values. बोलो, getting it?
उसके नीचे कर्टोसिस मार्क करिए, लेप्टोकर्टिक, प्लैटिकर्टिक, मेसोकर्टिक। ऑलराइट, उसके बाद डू वन थिंग, वहां डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इफ यू लाइक द डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन चेंज दैट, इट्स फाइन, अदरवाइज यू टेक दिस। वो वाला बुक का डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा नहीं है, इफ यू वांट यू टेक दिस। It will be better if you take it this way. Done? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विल डू इट लेटर। बेसिकली नॉर्मल क्या बोलते हैं ना कि मतलब वी हैव टू टेक वन स्टैंडर्ड लेवल एंड उसके अगेंस्ट में वी आर कंपेयरिंग कि अच्छा उससे ज्यादा टेल में डेटा है लेप्टोकर्टिक, कमती है प्लैटिकर्टिक। एंड प्लैटिकर्टिक प्लीज डोंट अज्यूम कि ऐसे बंद हो जाएगा, यहां पर डेटा हो सकता है, यू कैन नॉट एक्जैक्टली से ना कि डेटा हैज टू लाई बिटवीन दिस एंड दिस, बट द आइडिया इज द डेटा इज वेरी क्लस्टर्ड अराउंड द एवरेज एंड एवरेज से दूर हार्डली कुछ बचेगा, मतलब इट्स टू मच एकदम अराउंड द एवरेज पार्ट, राइट। उसके बाद में और दिस इज फाइन, लास्ट लाइन मार्क करिएगा कर्टोसिस में जस्ट अबव द टर्म कोस्क्यूनेस एंड कोकर्टोसिस, कैन यू सी दैट, जस्ट उसके ऊपर वाला लाइन मार्क कर लीजिए। ग्रेटर पॉजिटिव कर्टोसिस एंड मोर नेगेटिव स्क्यू इंडिकेट्स इंक्रीज्ड रिस्क। ऑब्वियसली नेगेटिव स्क्यू बहुत ज्यादा है, मतलब देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सट्रीम नेगेटिव इवेंट, एंड हाई कर्टोसिस मतलब एवरेज से के पास होने से ज्यादा चांस है कि डेटा या तो ज्यादा पॉजिटिव या ज्यादा नेगेटिव होगा, दैट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग हाई रिस्क। हाई एसडी हाई रिस्क, हाई कर्टोसिस हाई रिस्क, नेगेटिव हाई नेगेटिव स्क्यूनेस हाई रिस्क। बोलिए गुड टू लिया।
कंफर्टेबल पूरा चीज. नेक्स्ट पार्ट इज योर को-स्क्यूनेस एंड को-कर्टोसिस. उसमें आइए. Now over here there will be no numerical on co-skewness, co-kurtosis. Just a few lines you need to know. उसके अलावा इसमें कुछ करना नहीं है. Co-skewness, co-kurtosis कहीं काम में नहीं आएगा और right, just theoretically दिया हुआ है थोड़ा सा. Second line देखिएगा. Cross central moments for the concept of covariance. Next line, known as co-skewness, and fourth cross central moment is co-kurtosis. It is very simple. वेरियंस वॉज कि एवरेज से ऊपर नीचे डेटा कैसे मूव कर रहा है. वेरियंस में अपने x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ले रहे थे. कोवेरियंस में आई वांटेड टू चेक द मूवमेंट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y एंड इट वाज x माइनस एक्स बार वर्सेस y माइनस y बार. सो इट वाज x माइनस एक्स बार इनटू y माइनस y बार. को-स्क्यूनेस एंड को-कर्टोसिस क्या होगा? जैसे दो डेटा का आपस का मूवमेंट, वैसे ही दो डेटा का आपस का एक्सट्रीम नेगेटिव वैल्यूज को-स्क्यूनेस. दो डेटा के बीच का कर्टोसिस इज को-कर्टोसिस. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इट विद अ 2D थिंग ओवर हियर, 2-डायमेंशनल ग्राफ ओवर हियर. सो को-स्क्यूनेस, को-कर्टोसिस थोड़ा सा इमेजिन करो कि अपने लोग जैसे दो डेटा एक दूसरे के अगेंस्ट में कैसे मूव करेगा डायरेक्शनली. दैट वाज को जब अपने सेकेंड मोमेंट का बात कर रहे थे तो कोवेरियंस था. When third moment, fourth moment यूज करोगे, power 3, power 4 यूज करोगे, when you want to see two data sets with respect to each other का skewness kurtosis, that is co-skewness, co-kurtosis. No numerical, no analysis will be needed over here. उसके बाद में they are giving an example. एक बार देखना है तो देख लीजिए आप लोग. There are certain stocks given in that table and वो time period पे stock का plot किया हुआ है. Stocks 1, 2, 3 and 4. Now if you see stock 3 and 4 का अगर आप देखोगे so यहाँ पर एक सेकेंड, स्टॉक 1 एंड 2 का इफ यू सी एंड स्टॉक 3 एंड 4 का इफ यू सी, इट इज मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ डेटा. इट इज जस्ट रिवर्स्ड अगर आप देख रहे हो तो. कैन यू जस्ट ऑब्जर्व? स्टॉक 1 स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टिल 12.6. स्टॉक 2 इज स्टार्टिंग फ्रॉम -2.4 एंड बहुत ही अजीब तरीके से डेटा मूव कर रहा है. 3 एंड 4 का देन द डेटा इज गिवन. एक बार पूरा चीज समझते हैं. Next part में what they've done is they've combined stock 1 plus 2 into portfolio A and 3 and 4 into portfolio B. Now you do one thing, नीचे वाला जो टेबल है उसमें portfolio A के ऊपर में लिखो stock 1 plus 2 and B को सर्कल करके लिखो stock 3 plus 4. Now do one thing, वो जो सेकेंड टेबल दिया है ना पोर्टफोलियो AB का, उसके ऊपर फोर्थ लास्ट लाइन देखिए. यू विल अंडरस्टैंड इससे पूरा. द वर्स्ट रिटर्न अकर्ड ड्यूरिंग टाइम, फॉर एग्जांपल द वर्स्ट रिटर्न फॉर स्टॉक 1 अकर्ड ड्यूरिंग टाइम पीरियड 3. नाउ लेट्स सी ऊपर वाला टेबल में 1 का स्टॉक का वर्स्ट पीरियड ऑफ रिटर्न कब था? 3 में. दिख रहा है एवरीवन? अच्छा, वही वो लाइन कंटिन्यू करते हैं. बट इन पोर्टफोलियो ए द वर्स्ट रिटर्न अकर्ड इन टाइम पीरियड 2. अब पोर्टफोलियो ए का वर्स्ट रिटर्न देखो किस में आ रहा है? टाइम पीरियड 2 में आ रहा है. सिमिलरली द बेस्ट रिटर्न फॉर स्टॉक 4 अकर्ड ड्यूरिंग पीरियड 4. स्टॉक 4 का देखो पीरियड कौन से में बेस्ट रिटर्न आ रहा है? टाइम पीरियड 4 में 12.6% रिटर्न है. दिख रहा है? नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं. बट इन पोर्टफोलियो बी द बेस्ट रिटर्न अकर्ड ड्यूरिंग पीरियड 7. बी का बेस्ट रिटर्न देखो किस में आ रहा है? दैट इज द लास्ट वन. लास्ट वन है ना? हाँ, लास्ट वन, 7.5%. सो बेसिकली द आइडिया इज once you combine two stocks into one portfolio, suppose मैंने stock 1, 2 दोनों में combine करके invest किया, suppose मैंने 3 and 4 दोनों में combine करके invest किया, तो 1 and 2 together highest lowest returns क्या है? Skewness. 3, 4 together highest returns highest lowest returns क्या है? Skewness. So in order to study two data sets का आपस का skewness and kurtosis, we need something called co-skewness, co-kurtosis. Because if I combine two variables, अगर दोनों का co-skewness इतना ऐसा स्ट्रांग होता, लाइक से फॉर एग्जांपल कि ये बिजनेस डूबेगा तो ये बिजनेस भी डूबेगा, एंड उन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो सोचिए कितना नुकसान हो सकता है. बिकॉज आइदर बोथ ऑफ देम आर गोना डू टू वेल और टू बैड. वी विल स्टडी ये थोड़ा सा, ये जो कोवेरियंस है दैट वी विल स्टडी मोर इन डिटेल. डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑल करते हैं ना अपने लोग, बताया था शायद लास्ट, नहीं बताया था. सो कोवेरियंस एंड ऑल, ओके, सिंस आई स्किप दैट पार्ट probably, I'll do it in portfolio. The idea is, why do you need to study covariance? I'd say for example, if I'm investing in two stocks, it's very important to understand कि ये सब maths हम लोग पढ़ रहे हैं. Why are we studying quants? What is going to be the application of the same?
आज दो डेटा सेट, सपोज आई एम इन्वेस्टिंग इन अ पोर्टफोलियो विद 2 स्टॉक्स, आइदर बोथ द स्टॉक्स आर मूविंग अप और बोथ द स्टॉक्स आर मूविंग डाउन. तो मेरा जो पोर्टफोलियो, इफ आई हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ दीज 2 स्टॉक्स टुगेदर, सो मूवमेंट इज गोना बी लाइक दिस. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 2 स्टॉक्स, एक ऊपर जाएगा दूसरा नीचे जाएगा, एक नीचे जाएगा दूसरा ऊपर जाएगा. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टॉक इन दिस मैनर, सो देन उनका कंबाइंड रिटर्न ऐसा होगा, बिकॉज एक का इंक्रीज दूसरा का डिक्रीज दोनों को बैलेंस आउट कर रहा है. सो द पोर्टफोलियो विल मूव इन दिस रेंज. विच वन डू यू थिंक इज मोर रिस्की, द फर्स्ट ऑप्शन और द सेकेंड ऑप्शन? द फर्स्ट ऑप्शन, because if you combine the 2 stocks together, the first option is giving you more volatility because दोनों increase या दोनों decrease, but second case में एक दूसरे को balancing out का काम चल रहा है. So they kind of balancing out each other. So that becomes your diversification. इसीलिए बोलते हैं कि don't put all your eggs in one basket. Don't invest all your money in one industry. Try to put money in multiple places. ताकि कहीं अगर कुछ नुकसान हो तो दूसरा जगह से it is kind of recovered. बोलिए, following. So looking at these factors, we need to study that when 2 variables are combined together, तो वो कैसे react करेगा. That is why हम लोग ये covariance and correlation all we will apply. I will do these things once I do portfolio का part है. Similarly, since ये example कर रहे थे अपने लोग, so co-skewness and co-kurtosis भी study करना होगा. But you don't have to study anything in co-skewness and co-kurtosis. जो 2 लाइन मार्क कराया था खाली उतना ही. थर्ड मोमेंट, फोर्थ मोमेंट देख रहे हैं, but then we are looking at 2 variables का skewness with respect to each other, 2 variables का kurtosis with respect to each other, that is co-skewness और co-kurtosis. It will help me in analyzing when I combine positions together, तो वो लोग आपस में किस तरीके से react करेंगे. That is what it is going to help me with. और कुछ नहीं करने का co-skewness kurtosis में. Comfortable everyone? Alright. Move to the last LOS. The best linear unbiased estimator में आइए. सेकेंड लाइन मार्क करिएगा, पॉइंट एस्टिमेट्स आर सिंगल वैल्यूज यूज्ड टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर्स. नेक्स्ट लाइन, नोन एज एन एस्टिमेटर. नाउ डू वन थिंग, देयर आर 4 पॉइंट्स गिवन ओवर देयर, जस्ट मार्क अनबायस्ड एस्टिमेटर. नेक्स्ट लाइन, एफिशिएंट. नेक्स्ट लाइन, कंसिस्टेंट. एंड नेक्स्ट लाइन, लीनियर. ये LOS के साइड में इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, अदरवाइज छोड़ दो एक बार. मतलब बेसिकली इफ यू वांट राइट आफ्टर सैंपल पॉपुलेशन पढ़ाने के बाद पढ़ाऊंगा. सो एक बार के लिए इसको पॉज करिए. आई विल डू दिस LOS आफ्टर आई एम डन विद द सैंपल एंड पॉपुलेशन पार्ट. सो वंस आई डू दैट आई विल बी कवरिंग दिस LOS. कंफर्टेबल एवरीवन टिल हियर? ऑलराइट.